everyone, this is Shreya Singh and welcome to my channel. This video is on the topic behavioralism. We have also covered the topic traditional approach in the previous video. You can go and watch it. Within your syllabus, we have two approaches in the study of political science. One is traditional approach and the other is a modern approach. So, for knowing the traditional approach, you can go and see my previous video. Within this, before starting the modern approach, we will first know that the difference between the two of them before starting the behavioralism. So, as their name says, traditional approach is something which is more based upon values. It is value laden. It is not focus. It does not focus upon facts and scientificism theories, but its main motive, its main focus is upon values, and largely it is normative, whereas the modern approach is more upon its more focus is upon scientificism. It is also known as by the name of empirical approach, because it is more objective based, it is more value free. Okay, so behavioralism is a part of modern approach, behavioralism and post behavioralism. And what we mean by behavioralism is the study of individual behavior through scientific ways, or scientifically, in the political phenomena, in the study of political phenomena. Okay, I'm saying it again. Behavioralism simply means the study of individual behavior scientifically in the study of political phenomena. Okay, now, how behavioralism came. As I said, that behavioral approach is also known as empirical approach. Empirical means something which is scientific. ओके, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, जहाँ स्टडी हो जाती है, जहाँ पे हम लोग मेथड्स नहीं कहेंगे, मतलब जो है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस, फैक्ट्स बेस और वेरीफाइबिलिटी आ जाती है, वो उसको हम लोग एम्पेरिकल अप्रोच कहते हैं. अब जो मेन रीज़न था बिहेवियरिज्म का आने का, वो ये था कि इन द यूएस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि मॉस्का, मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन एट्सेट्रा. सो दे रियलाइज कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम था विद इन द सोसाइटी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उसकी वजह से दे फील दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्सन. इस वजह से जो है इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि दे वांटेड टू प्रोवाइडेड द आइडियल क्लाइमेट फॉर द पॉलिटिकल बिहेवियरिज्म टू डेवलप. ओके, बिकॉज दिस वॉज अ टाइम व्हेन दे फेल्ट कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करना एंड उनके बिहेवियर को स्टडी करना विद इन दिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. सो दिस वॉज अ मेन रीज़न ऑफ कमिंग. एंड जैसे कि हम लोगों ने अभी इसका जो है देखा कि इट स्टडीज द प्रोसेसेस सच एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, political ideologies, political culture, and factors such as leadership, communication, and decision making, etc. Okay, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच है, तो ये सब जो है डिसीजन मेकिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब चीज़ें हम जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, कल्चर है, ये सब इन सब प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. So, behavioral approach is an attempt to improve our understanding of points by seeking to explain the empirical aspect of political life by means of methods, theories, criteria of proof that are acceptable according to canons and assumptions of modern political science. Now, this was said according to Robert Dahl, क्योंकि ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से ये वाली लाइन देखिएगा, सेकेंड लाइन एक तरीके से एम्पेरिकल एक्सपेक्ट है, साइंटिफिक एक्सपेक्ट है पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी करने का, थ्रू मेथड्स, थ्रू थ्योरीज, थ्रू वेरीफाइबिलिटी, थ्रू प्रूफ. ठीक है, तो एक तरीके से फोकस इज अपॉन द ऑब्जेक्टिविटी, और काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है. अब ये सिर्फ खाली जो है इसी में फोकस नहीं कर रहे हैं कि विद इन द
पॉलिटिकल ही हम लोग सिर्फ खाली स्टडी कर रहे हैं। नो, देर इज एन इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है। हम लोग इंटीग्रेटेड स्टडी है जहाँ पे हम लोग सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं, हिस्ट्री को भी कंबाइन कर रहे हैं और साइकोलॉजी को भी कंबाइन कर रहे हैं। तो दिस इज़ होल, सबको हम लोग एक साइंटिफिक जो है साइंटिफिक वे में, एक साइंटिफिक आउटलुक में हम स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज एन, ये भी इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच टू डेवलप अ साइंटिफिक थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिहेवियरलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो डेविड ईस्टन के द्वारा जो दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही इंपॉर्टेंट है। जो भी फीचर्स हैं बिहेवियरलिज्म के, तो बेसिकली 8 हैं इसमें। रेगुलरिटीज़ हैं, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज़, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। ये आठों की आठों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो रेगुलरिटीज़ क्या होता है? रेगुलरिटीज़ का मतलब हो गया यूनिफॉर्मिटीज़, ठीक है। यूनिफॉर्मिटीज़ इन द ह्यूमन बिहेवियर विच कैन बी फॉर्मलाइज इनटू अ जनरल थ्योरी। सो बाय रेगुलरिटीज़ वी डिफरेंसेस इन द ह्यूमन बिहेवियर। हम सब ह्यूमन जो हैं काफ़ी डिफरेंट है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सभी के अंदर, बट स्टिल एक जनरलाइज पैटर्न देख सकते हैं हम सबके बिहेवियर में। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया, हम लोग को अगर जनरलाइजेशन देखना हो ना हमारी सोसाइटी में, तो हम जो है वोटिंग बिहेवियर से जान सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल इन दिस रिस्पेक्ट। क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन, सो दिस इज़ वाई कि पॉलिटिकल जो बिहेवियरिस्ट हैं दे कंटेंट दैट इन द पॉलिटिकल साइंस रिजल्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड दे कैन बी प्रिडिक्टेड। अब लोग इलेक्शंस में कहते हैं कि अरे ये तो यही पार्टी जीतेगी, अब तो यही पार्टी जीतेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को, लोगों की, दूसरे लोगों की सोच के बारे में पता होता है कि ये तो उसी को ही वोट देंगे बिकॉज दे हैव सच एंड सच सच एंड सच रेगुलरिटी विद पर्सन। तो वो पहले से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो बिहेवियरिस्ट हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एज ग्रांटेड लाइक द ट्रेडिशनलिस्ट। क्योंकि अभी मैंने बताया कि दोनों की सोच पूरी अलग है, बिहेवियरिज्म अलग है, ट्रेडिशनल अलग है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो वो लोग कोई एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी पे विश्वास नहीं करते हैं, रैदर दे बिलीव ऑन वेरिफिकेशन। अगर कोई साइंस वाला इंसान होगा, उसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात बताएंगे या फिर जो है फिलोसफीज़ के बारे में बताएंगे, तो वो उतना बिलीव ही नहीं करेगा, वो उसको जो है नेगलेक्ट करेगा ना, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को हमेशा से ये चीज़ें बड़ी ही प्रूफ के साथ चाहिए होती हैं, बड़ी वेरिफिके, वो हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसका जो एक रिजल्ट देगा और फिर बताएगा कि कोई चीज़ सही है कि नहीं, वेरीफाई करने के बाद। सो वही चीज़ है कि जो साइंटिफिज्म, बिहेवियरिज्म भी बिल्कुल एक साइंस के स्टूडेंट की तरह ही है, जो कि वेरीफाई पे, वेरिफिकेशन पे जो है बिलीव करता है, जो कि टेस्ट करता है एवरीथिंग। Anything which cannot be verified or tested can be termed only as dogmatic and not scientific. So वही चीज़ है, वही वेरिफिकेशन को इसमें बताया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिहेवियरिज्म का, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है कि दे बिलीव इन एम्पिरिकल और साइंटिफिक रिजल्ट्स ओनली विच कैन बी अचीव्ड आफ्टर साइंटिफिक वेरिफिकेशन। ओके, टेक्निक्स, टेक्निक्स कुछ भी ये emphasize करता है अपॉन द अडॉप्शन ऑफ करेक्ट टेक्निक्स फॉर एक्वायरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द साइंटिफिक डेटा। जिस तरीके से हम लोग के पास मेथड्स होते हैं और एक जो भी हमारे पास डेटा है, तो उसको जो है सोफिस्टिकेटेड टूल्स के थ्रू जो है, जैसे कि सैम्पल लेना, सर्वेस करना, मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं। तो एक तरीके से ये सब डिफरेंट क्या है, टेक्निक्स हैं कि हम उसके थ्रू जो है हम डेटा को डिकोड कर सकें। ठीक है, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन to obtain the precision in their prediction, behavioralist emphasis on assigning quantities to help in this proper analysis. जो quantification का क्या मतलब है कि जो behavioralist हैं वो ये कहते हैं कि जो researchers हैं वो properly explain नहीं कर सकते हैं political phenomena को, और जो है थ्रू, मतलब विदाउट मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन वो लोग सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट पॉलिटिकल रिजल्ट विदाउट मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन।
ये जो डेविड ईस्टन है वो भी कहते हैं कि जो मतलब इस पूरे प्रोसेस के लिए जैसे कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा है एंड जो स्टेटमेंट्स हैं ऑफ देयर टेबल्स ग्राफ्स कर्व्स, सो दीज ऑल थिंग्स आर ड्रॉन इन द बिहेवियरल रिसर्च, ठीक है, क्योंकि इन विद इन दिस बिहेवियरलिज्म जो पूरी रिसर्चर्स जो होते हैं वो लोग एक पूरा क्वांटिटी के एंड मेजर करते हैं पूरे डेटा को, जो है समझते हैं पूरे डेटा पैटर्न्स को, और ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, इन पूरे जो है डेटा को इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट हम विद इन दिस बिहेवियरलिज्म अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हम एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और यही जो मेजरमेंट है ये हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग बिहेवियरलिज्म में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में। देन नेक्स्ट इज द वैल्यूज। अब वही भी, ये तो वैल्यू न्यूट्रल है, ये तो हम स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो है वैल्यूज जो है यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ खाली ऑब्जेक्टिविटी है। इट रिक्वायर्स ओनली ऑब्जेक्टिविटी, रिक्वायर्स ओनली एम्पिरिकल एनालिसिस विच हैज़ टू बी वेरीफाइड, ठीक है। और वैल्यूज कांट बी टेस्टेड, वैल्यूज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वैल्यूज को नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई वैल्यूज यहाँ पे क्या, इट हैज़ अ ग्रेट एम्फेसिस अपॉन द वैल्यूज न्यूट्रलिटी। ओके, नाउ सिस्टमेटाइजेशन क्या होता है कि थ्योरी एंड रिसर्च मस्ट गो हैंड इन हैंड, बोथ रिक्वायर ईच अदर टू प्रूव देयर रेलेवेंस। एक सिस्टमैटिक वे होता है एक हर चीज़ को करने का, जिसमें political science must be systematic, by which they mean that it must be theory oriented and theory directed, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लोजली रिलेटेड हैं, जो रिसर्च है अनट्यूटर्ड बाय द थ्योरी में प्रूव ट्रिवियल एंड थ्योरी अनसपोर्टेड बाय द डेटा फ्यूटाइल, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई दोनों क्लोजली इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं ऑफ अ कोहेरेंट एंड ऑर्डरली बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ प्योर साइंस। प्योर साइंस, ओके, प्योर साइंस देखो क्या होता है, जो बिहेवियरलिस्ट हैं वो लोग प्योर साइंस अप्रोच पे फोकस करते हैं। मतलब ये चीज़ का कहने का मतलब है कि वॉट एवर द रिसर्च दे मेक, देयर मेन दैट शुड बी अप्लाइड इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ये लिखा है ना कि प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम, तो वही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम बट इन अ साइंटिफिक थ्योरी, ओके, इन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई ये इसका कॉज है, ये इसका इफेक्ट है। तो एक प्योर साइंस के बेसिस पे ये जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था थ्योरी के पार्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। एंड क्योंकि जो है ये जो है हम लोग सिर्फ खाली पॉलिटिकल बेसिस पे या पॉलिटिक्स में ही नहीं स्टडी करते हैं, बट हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं विद द अदर सोशल साइंसेज ऑल्सो, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन होता है ऑफ इकोनॉमिक, ऑफ सोशोलॉजी, ऑफ पॉलिटिक्स, कल्चर, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सब चीज़ों को, एंथ्रोपोलॉजी। तो एक तरीके से ये क्या है, सब चीज़ों को हम लोग कंबाइन करके स्टडी करते हैं, और थ्रू द साइंटिफिक मेथड एंड वी स्टडी द पॉलिटिकल फिनोमेना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, एक इंटीग्रेशन में हम सब इसमें स्टडी करते हैं। तो ये जो है पूरे पूरे 8 पॉइंट्स है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिहेवियरलिज्म। ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बस को रिवाइज करती हूँ कि रेगुलरिटीज़ का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हम लोग देखते हैं कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हम लोग के इंसानों की सोचने की सोच जो है वो जो हम लोग सोचते हैं वो भी कहीं न कहीं हद तक सिमिलर है, ठीक है। तो वो रेगुलैरिटीज़, वेरिफिकेशन एक, भाई साइंस का इंसान है, एक साइंस का स्टूडेंट है, उसको हर चीज़ वेरीफाई करके और टेस्ट करके ही समझ में आती है। बस वही चीज़ बिहेवियरलिज्म में भी है कि फोकस इज अपॉन द साइंस, टेस्ट प्रूफ करेगा, उसके बाद जो है रिजल्ट पे टेस्ट करेगा। टेक्निक, टेक्निक जो वो वेज हैं डेटा को इंटरप्रेट करना, ठीक है, वो साइंटिफिक डेटा जो है उसको, टेक्निक्स डिफरेंट वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम एक्वायर करते हैं मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक डेटा, वो टेक्निक है। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन में ये चीज़ है कि बिहेवियरलिस्ट ये कहते हैं कि बिना मेजरमेंट और मेरा बिना क्वांटिफिकेशन के हम जो है रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं विद ऑफ द पॉलिटिकल फिनोमेना, ठीक है। तो वो क्वांटिफिकेशन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है विद इन दिस बिहेवियरलिज्म। वैल्यूज़, वैल्यू न्यूट्रल है, ये तो स्टार्टिंग से कहते रहे, वैल्यूज़ को लेके तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ये तो मेन पॉइंट ही है दोनों के बीच के डिफरेंस का। सिस्टमेटाइजेशन का मतलब है कि क्योंकि सारी रिसर्चेज एंड थ्योरीज दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं, दो एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना
पहला नहीं। तो वही चीज़ है कि दे गो हैंड इन हैंड, सिस्टमैटाइजेशन है दोनों के बीच में। प्योर साइंस है भई, जो साइंस जो है वो दे रहा है आपको सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है? तो वो यहाँ पे प्योर साइंस है थ्रू द साइंटिफिक थ्योरीज। इंटीग्रेशन क्या था कि भई हम स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल फिनोमेना को, हैविंग इंटीग्रेटेड अप्रोच विद द डिफरेंट सोशल साइंसेस, जिसमें हम लोग सोशल साइंसेस के सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी सबको इंटरकनेक्ट करके जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो यही जो है बिहेवियरिस्ट की सोच है, अप्रोच है। ओके, तो ये 8 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके। और बाकी क्रिटिसिज्म भी हैं इसमें। क्रिटिसिज्म जो है एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा इसको भी। तो इसमें क्रिटिसिज्म जो है हमको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका पोस्ट बिहेवियरिज्म वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि इसी के क्रिटिसिज्म की वजह से बिहेवियरिज्म को भी नेग्लेक्ट किया गया और फिर पोस्ट बिहेवियरिज्म की थ्योरी आई, अप्रोच आई। पोस्ट बिहेवियरिज्म जो था वो ये चीज़ पोस्ट बिहेवियरिज्म नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं इसमें थोड़ा-सा बता देती हूँ कि भई पोस्ट बिहेवियरिज्म में हम लोग ने बिहेवियरिज्म पूरे तरीके से साइंटिफिक था, प्योर साइंस था, ठीक है? पोस्ट बिहेवियरिज्म जो है वो साइंटिफिक प्लस वैल्यूज़ दोनों की इम्पोर्टेंस दी गई है। उसमें ट्रेडिशनल की भी चीज़ें हैं और बिहेवियरिज्म की भी चीज़ें हैं, तो भई वो पोस्ट बिहेवियरिज्म बन गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि कहीं न कहीं जो है ये पॉइंट्स आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है पोस्ट बिहेवियरिज्म के लिए, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरिज्म आया ड्यू टू दिस क्रिटिसिज्म। सो उस टाइम पे बस इतना सा ध्यान रखिए कि पोस्ट बिहेवियरिज्म मीन्स वैल्यूज़ भी हैं प्लस वहाँ पे साइंटिफिक भी है, ठीक है? दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ खाली जो है साइंटिसिज्म है, ठीक है? सो दिस वाज ऑल बिहेवियरिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसका मीनिंग और कैसे आया, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कमिंग बिहेवियरिज्म, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टरिस्टिक्स डेविड ईस्टन की ही इंपॉर्टेंट है, साथ में आप चाहो तो हिंज यूलो की भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, बस खाली 4 पॉइंट्स हैं उसमें, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी मेन आपका डेविड ईस्टन ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज ऑल। थैंक यू।